اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ جنگل کے درختوں پر سناٹا چھایا ہوا تھا، جیسے برسوں سے یہاں کسی انسان کے قدم نہ پڑے ہوں۔ بادلوں نے چاند کی روشنی کو نگل رکھا تھا اور ہوا کی سرد گوشیوں کے کسی نگاہی آفت کی نوید دے رہی تھی۔ شہر سے دور ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی جنگل کے بیچوں بیچ اپنی نحوست پھیلائے کھڑی تھی۔ لوگ اسے شکار گاہ کا گستاخ کہتے تھے۔ روایت تھی کہ جو بھی وہاں رات گزارتا وہ زندہ واپس نہیں آتا، یا اگر آئے بھی تو اپنی عقل کھو چکا ہوتا۔ نمرا ایک نوجوان صحافی سنسنی خیز کہانیوں کی تلاش میں مشہور تھی۔ میڈیا چینل کو ریٹنگ چاہیے تھی اور اسے شہرت۔ جب اسے اس جھونپڑی اور وہاں ہونے والی پرسرار گمشدگیوں کی خبر ملی تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ حقیقت جان کر رہے گی۔ دوستوں نے اسے منع کیا، خاندان نے قدم روکنے کی کوشش کی، مگر اس کی ضد کسی کی نہ سنتی تھی۔ رات کے وقت جنگل کے راستے میں گاڑی ڈولتی رہی، ٹارچ کی روشنی بمشکل راہ دکھا رہی تھی۔ نمرا نے اپنے کمرے اور نوٹ بک کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ کچھ دور اسے ایک لکڑی کا سائن بورڈ نظر آیا جس پر دھندلا سا لکھا تھا، واپس لوٹ جاؤ، وہ ہنسی ڈرانی سازش مجھ پر اثر نہیں کرے گی۔ جھونپڑی تک پہنچنے میں اسے صرف 10 منٹ لگے، مگر ہر قدم اسے گھنٹوں کا سفر محسوس ہوا۔ جھونپڑی ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں، کالے دھبے اور ٹوٹی چھت کے ساتھ ایسے کھڑی تھی جیسے کسی پتھروں کی قیام گاہ ہو۔ اس نے دروازہ دھکیل کر کھولا اور جیسے ہی کواڑ چٹچاہٹ کی آواز سے چیخا، ایک سرد لہر نے اسے اندر دھکیل دیا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا، لیکن عجیب بات یہ کہ اس اندھیرے میں بھی چیزیں واضح دکھائی دینے لگی۔ فرش پر خون جیسے لال نشانات، دیوار پر ناخنوں کے گہرے کھرچاؤ، چھت سے لٹکی رسی اور کونے میں ایک پرانی تصویر۔ اس تصویر میں ایک شکاری اپنے فخر سے شکار دکھا رہا تھا، مگر تصویر کے اطراف سیاہ دھبے تھے جیسے کسی نے خونی انگلیوں سے اسے خراب کیا ہو۔ عمران نے کیمرہ آن کیا۔ یہ جھونپڑی سے زیادہ منحوس ہے جتنی کہانیوں میں بیان کی گئی ہے، وہ بولی۔ تبھی اچانک دروازہ خود بخود بند ہو گیا، دھڑاک کی آواز گونجی اور ساتھ ہی ہوا میں خوفناک سرگوشیاں ابھریں۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ نمرا کے ہاتھ کام گئے، اس کا کیمرہ خود بخود ریکارڈنگ موڈ میں چلا گیا۔ روشنی جھلملائی اور پھر سامنے اس تصویر والا شکاری اب تصویر سے نکل کر اس کے سامنے کھڑا تھا، خونی آنکھوں اور کٹے گلے کے ساتھ۔ نمرا نے چیخ مارنا چاہی، مگر آواز حلق میں دب کر رہ گئی۔ وہ پیچھے ہٹی، دیوار سے ٹکرا گئی۔ اس شکاری کی بھاری آواز اس کے کان کے قریب گونجی، یہ جنگل میرا ہے اور میری شکار گاہ میں گھسنے والے کو میں چھوڑتا نہیں۔ کیمرہ زمین پر گر کر پھٹ پھٹانے لگا۔ تصویر دھندلی ہوئی، مگر آخری منظر میں صاف دکھائی دیا۔ نمرا کے پیروں کے پاس خون بہنے لگا تھا اور اس کی چیخیں تاریکی میں نگل لی گئی تھیں۔ جھونپڑی کی خاموشی نمرا کی ہڈیوں سے لرز رہی تھی۔ اس کا کیمرہ فرش پر گرا ہوا تھا اور پردے کی طرح ہلکی روشنی اس پر پڑ رہی تھی۔ تصویر والا شکاری غائب ہو چکا تھا، مگر خون کی بو ابھی بھی فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ نمرا کے ہاتھ برس رہی، سردی کی مانند کانپ رہے تھے۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن دل کی دھڑکن قابو نہ آ سکی۔ یہ سب وہم ہے، شاید میں زیادہ تھک گئی ہوں، وہ خود سے بڑبڑائی، مگر دل نے فوراً جواب دیا، یہ حقیقت ہے۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ باہر سے بند لگ رہا تھا۔ اس نے زور سے دھکا دیا، مگر صرف لکڑی کی کرہاتی آواز آئی۔ نمرا کی سانسیں بھاری ہونے لگی۔ اس نے موبائل نکالا، کوئی سگنل نہیں، اس لیے وہ گھبرا کر ایک کھڑکی کی طرف بڑھی اور باہر دیکھا۔ اندھیرا ہر سمت پھیلا ہوا، مگر پھر اسے کسی کے چلنے کی مدھم سی آواز سنائی دی، جیسے درختوں کے بیچ اسے گھیر رہا ہو۔ نمرا پیچھے ہٹ گئی اور جھونپڑی کے اندر کنکریوں سے چاروں طرف نظارہ کرنے لگی۔ دیواروں پر ایک نئی تبدیلی نے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا دی۔ وہی ناخنوں کی خراشیں اب بڑھتی جا رہی تھی، جیسے کوئی اندر داخل ہونے کے لیے رینگ رہا ہو۔ چھت کے کسی حصے میں کچھ بھاری سا گرا۔ نمرا چونک کر اوپر دیکھنے لگی۔ چھت پر خون کے نشان پھیلنے لگے۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ وہاں کوئی چل رہا ہے، کوئی زخمی، کوئی مردہ۔ اس کے پاؤں خود بخود الٹے سمت بھاگنے لگے۔ وہ ایک کمرے میں جا پہنچی جہاں ایک پرانا لکڑی کا صندوق پڑا تھا۔ صندوق کے کنارے سے خون ٹپک رہا تھا۔ نمرا نے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور کمرے میں تاریکی چھا گئی۔ اس تاریکی میں ٹک 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 صندوق کے اندر سے کسی کے ناخن کا دروازہ کھرچنے کی آواز آنے لگی۔ نمرا نے چراغ کی طرح موبائل کی فلیش آن کی اور صندوق پر روشنی ڈالی۔ خون اب اور تیزی سے بہنے لگا تھا۔ ہمت نہ ہوتے ہوئے بھی اس نے آہستہ ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی اس نے صندوق کا ڈھکن چھوا، وہ خود بخود کھل گیا۔ اندر سے ایک خون میں بھیگا ہرن کا سر باہر لٹکا، مگر سر کی آنکھیں زندہ تھی۔ وہ نمرا کو گھور کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے خوف سے چیخ مار دی اور پیچھے گری۔ ہرن کے سر سے نکلی دردناک آواز اس کے کانوں کو کاٹنے لگی، وہ ہمیں مار کر کھیلتا ہے، بچ جاؤ اگر بچ سکو۔
इस लम्हे पिछले कोने से भारी कदमों की चाप सुनाई दी। कोई आहिस्ता आहिस्ता कमरे की तरफ बढ़ रहा था। वही शिकारी जिसके हाथ में खून आलूद छुरी थी। इसकी सांसें ऐसी थीं जैसे जंगल में जख्मी दरिंदा चल रहा हो। निम्रा ने जल्दी से कैमरा उठाया और एक मेज के पीछे छुप गई। शिकारी दरवाजे से दाखिल हुआ, मगर इसकी आंखें खाली और बेजान थी, जैसे वो जिंदा नहीं बल्कि किसी और का गुलाम हो। इसने खून से भरी छुरी फर्श पर रगड़ते हुए कहा, शिकार शुरू हो चुका है। इमरा की नजरें कमरे की दूसरी जानब खिड़की पर जा ठहरी। इसने मौका देखते ही खिड़की तोड़ी और बाहर छलांग लगा दी। कांटेदार झाड़ियों ने इसके कपड़े फाड़ दिए, मगर जान तो बच गई। वो बगैर मुड़े भागती रही। हर तरफ अंधेरा था, मगर दूर कहीं एक रोशनी दिखाई दी, जिंदगी की उम्मीद। और इस तरफ भागी, मगर जैसे ही करीब पहुंची, रोशनी बुझ गई। मगर इसने बुझने के साथ ऐसे कई लोगों की धीमी चीखें सुनाई दी, जैसे इनकी रूहें रोशनी के साथ ही कैद हो चुकी हों। अचानक जमीन से कदमों के नीचे से निकल गई और वो किसी गड्ढे में जा गिरी। मट्टी और गीले पत्तों के दरमियान पड़ी और सांसें संभलने लगी। लेकिन जैसे ही उठने का इरादा किया, किसी ने इसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। एक खरदरी आवाज ने सरगोशी की, खामोश रहो वरना वो हमें ढूंढ लेगा। निम्र के दिल की धड़कन रुक गई। इसे लरसते हुए पूछा, आप कौन हैं? एक चेहरा धीरे धीरे तारे की तरह नमदार हुआ, आंखों में खौफ के गहरे साए, कपड़े फटे हुए, जिस्म खून में रंगा हुआ। मैं इनमें से आखिरी हूँ जो अभी जिंदा है। निम्रा ने डरी हुई आवाज में पूछा, वो कौन? इस शख्स ने आसमान की तरफ इशारा किया, जहाँ चंद बादलों में छुप रहा था। इसकी कांपती हुई आवाज गूंजी, वो शिकारी नहीं, लानती बदरू है, और ये जंगल इसकी कैद का। निम्रा का दिल एक लम्हे को रुक सा गया। इसने पूछा, हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? इसने आह भरी, अब जिंदा निकलने का एक ही रास्ता है। पहले तुम्हें इसकी कहानी सुननी होगी, तभी तुम समझोगी कि मौत आखिर तुम्हें क्यों ढूंढ रही है। जंगल के तारे कड़े में बैठी निम्रा और वो अजनबी दोनों हाँप रहे थे। दूर कहीं शिकारी के कदमों की चाप दिखाई और सुनाई दे रही थी, मगर वो घड़ा इसे अभी महसूस नहीं हुआ था। अजनबी ने निम्रा के करीब आकर सरगोशी की, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, सुनो। निम्रा ने सर हिलाया। खौफ में भी इसकी साफ्ती हिस्स जाग उठी थी। शायद यही कहानी इसकी जिंदगी बचा दे। अजनबी ने कपकपाती आवाज में कहना शुरू किया, यह झोंपड़ी कभी एक अमीर शिकारी सरदार रियाज की मलकियत थी। इसे शिकार का जुनून था। हिरन, रीछ, भेड़िया कुछ बाकी ना छोड़ा, मगर फिर इसे इंसानों का शिकार करने का शौक चढ़ गया। इमरा की आंखें फैल गईं। इसने यहाँ एक खुफिया खेल रचाया, जंगल में आने वाले मुसाफिरों को कैद करता, फिर इनका जिंदा शिकार करता और इनकी खाल दीवारों पर लटका देता। वो समझता था कि शिकार की असल खुशी डर में है। इमरा के हलक में कांटा सा अटक गया। फिर इसे रोका किसने? अजनबी ने आसमान की तरफ देखा, जैसे कोई दर्दनाक मंजर याद आ रहा हो। एक रात शिकारी के अपने ही साथी इसके खिलाफ हो गए। वो इसके जुल्म से तंग आ चुके थे। उन्होंने इसे इसी झोंपड़ी में बंद किया और जिंदा आग लगाकर भस्म कर दिया। निम्रा ने कांपते लबों से कहा, तो रूह कैसे वापस आई? अजनबी की आवाज में लर्जिश थी। वो मरते हुए चीखा, मेरा शिकार खत्म नहीं हुआ और उसकी लानत ने जंगल को कैद बना दिया। अब यहाँ कदम रखने वाला हर शख्स इसका शिकार बन जाता है। निम्रा की आंख नम हो गई। तुम्हें इसने कब पकड़ा? मैं 3 दिन से यहाँ कैद हूँ। वो हाँफने लगा, वो खेलता है, मरने नहीं देता। फौरन, जब तक शिकार टूट न जाए और आखिरी वार नहीं करता। निम्रा ने फैसला कल लहजों में कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। नबी ने अफसोस से झटका, निकलने का रास्ता है, मगर कीमत बहुत भारी। निम्रा चौंकी, क्या कीमत? अजनबी ने निम्रा की आंखों में झांका। शिकारी को इसके आखिरी शिकार की जरूरत है, जो इसे मुकम्मल करे, जो इसकी बदरू को आजाद करे। निम्रा को पहली बार लगा कि इस खड़े से भी ज्यादा अंधेरा इसकी किस्मत में लिखा जा चुका है। अचानक जमीन लरस गई, पत्तों की सरसराहट तेज होने लगी। अजनबी ने खौफ से निम्रा को थामा। वो हमें ढूंढ चुका है। इसने पहले कि वो समझ पाते, गड़े के दहाने पर 2 जलती सुर्ख आंखें नमदार हुईं। शिकारी की भारी सांसें सर पर झुक गईं। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा। निम्रा ने जल्दी से हाथ में पड़ी लकड़ी को मजबूती से पकड़ा। अजनबी ने इसके हाथ पर हाथ रखा, ये इसे नहीं रोक सकती, बस भागो। शिकारी ने एक चेस्ट लगाई और अजनबी पर टूट पड़ा। खून के चिमटे निम्रा के चेहरे पर बिखर गए। अजनबी की अजियतनाक चीख ने फिजा को चीर दिया। आवाज अचानक बंद हो गई। निम्रा घड़े से बाहर रेंग कर निकली और पूरी ताकत से भागने लगी। शिकारी की गर्ज इसके पीछे सुनाई दे रही थी और एक बड़े दरख्त के पास पहुंची तो देखा एक पुराना दरवाजा खड़ा था, दीवार के बगैर।
दरवाजा जिसे खोले बगैर इसका गुजर मुमकिन नहीं था। दरवाजे के ऊपर खून से लिखा था, बच कर जाओ तो भी मेरे नाम पर। निम्रा ने दरवाजा खोला। अचानक इसकी आंखों के सामने रोशनी फैल गई। वो एक कब्रिस्तान में खड़ी थी। हर कब्र के कुत्ते पर एक ही नाम कुंदा था, रियाज रियाज रियाज। हर कब्र के नीचे सरगोशियां उभरने लगी, हम कभी नहीं मरते, हम शिकार करते हैं। निम्रा पागलों की तरह पीछे हटी, मगर एक कब्र का ढक्कन खुलने लगा। अंदर से चलता हुआ हाथ बाहर आया और उससे पहले कि वो भाग सकती, वो हाथ इसकी टांग मजबूती से पकड़ चुका था। निम्रा की चीख आसमान तक गूंज गई और जंगल ने इस चीख को अपने अंदर दबा लिया। निम्रा कब्र के दिहाने पर गिर चुकी थी। जलता हुआ हाथ इसकी टांगों को इस हद तक जकड़ चुका था, कैसे लग रहा था कि कोई हड्डी टूट जाएगी। वो पूरा जोर लगाकर चीख रही थी, मगर आवाज कब्रिस्तान के सन्नाटे में गुम हो रही थी। कब्र के अंदर से एक भारी आवाज गूंजी, तू आई क्यों? निम्रा ने आंसू मिटी हुई आवाज में कहा, मैं यहाँ फंस गई हूँ, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। कब्र के अंदर से तंजी हंसी की गूंज सुनाई दी, जिंदा? यहाँ यहाँ तो जिंदगी भी मौत के ताबा है। निम्रा ने टांग छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, तुम क्या चाहते हो? आवाज ने सरगोशी की, आजादी। अचानक हाथ ने अपनी गिरफ्त ढीली की। निम्रा ने मौका पाकर पीछे हटते हुए सांस बहाल की। कब्र का ढक्कन धीरे धीरे बंद हो गया, मगर इससे पहले अंधेरे सुर्ख आंखें इससे घूरती रहीं। निम्रा ने इर्द गिर्द देखा। कब्रिस्तान की फिजा बदलने लगी थी। चांद की रोशनी गहरी सुर्खी में तब्दील हो रही थी। हवा का शोर बढ़ गया, जैसे कोई देख न सकने वाली फौज इसके गिर्द जमा हो। इसी लम्हे इसे अपने पीछे किसी कदमों की चाप सुनाई दी। वो मुड़ी तो देखा, शिकारी वहां मौजूद था। इसके चेहरे पर ताजा खून के धब्बे थे और उसके साथ वही बदरूं वाला अजनबी मुर्दा हालत में घसीटा जा रहा था। निम्रा पीछे हटी, मगर शिकारी ने अपना कदम आगे बढ़ाया। इसकी खून आलूद उंगली ने एक कब्र की तरफ इशारा किया। खरदरी आवाज निकलकर फिजा में गूंजी, ये सब मेरे हैं। निम्रा ने लरसते हुए पूछा, तुम्हारी बदरू यहाँ क्यों कैद है? शिकारी ने गुस्से भरी नजरों से जमीन की सिमत देखा। उन्होंने मुझे चिल्लाया, जिंदा। मेरी चीखें आसमान तक गईं, मगर किसी ने ना सुनी। इसकी आवाज बदले की आग में चल रही थी। उन्होंने मेरा शिकार खत्म करने की कोशिश की, मगर मैं मौत से भी आगे निकल गया। निम्रा ने हिम्मत करके कहा, तुम्हें खत्म किया जा सकता है, हर बदरू को खत्म किया जा सकता है। शिकारी अचानक कहका मारने लगा। इसकी हंसी ने कब्रिस्तान के मर्दों को भी हिला दिया। मुझे खत्म? तो ये कैसे करेगी? निम्रा ने तेजी से दिमाग उड़ाया। फिर इसे वो खून में डूबी तस्वीर याद आई, वही तस्वीर जिसमें शिकारी खुशी से अपना शिकार दिखा रहा था। तुम्हारी रूह इसी तस्वीर में कैद है ना? निम्रा ने हिम्मत जुटाकर कहा। शिकारी की मुस्कुराहट लम्हे भर को गायब हुई। आंखों में एक लम्हे के लिए खौफ चमका, फिर वो गायब। इसी वक्त कब्रिस्तान की जमीन दहल उठी। चारों तरफ की कब्रें फटने लगी और इनमें से आधे चले इंसान बाहर निकलने लगे। वो कराहते हुए चलाते निम्रा को घेरने लगे। वो हमें मार कर छोड़ गया, हम इसका इंतकाम चाहते हैं, हमें निजात चाहिए। इनकी सांसों में मौत की बदबू थी, फटी आंखों में अजियत का आलम। अचानक इतनी ही खौफनाक आवाज दोबारा गूंजी, मेरी तस्वीर तलाश करने निकली हो, चलो मैं साथ चलता हूँ। शिकारी ने निम्रा के पीछे आकर इसकी गर्दन पकड़ ली। वो चीखने लगी। वो उसे घसीट कर कब्रिस्तान के एक दरवाजे की तरफ ले गया, जो अब अचानक नमूदार हुआ था। दरवाजे के ऊपर लिखा था, इस रास्ते से वापस वही जा सकता है जिसका दिल अभी टूटा ना हो। निम्रा का दिल धड़कने लगा। शिकारी ने दरवाजा खोला और उसे जोर से धकेल कर अंदर फेंक दिया। वो फिर से इसी झोंपड़ी में थी, मगर अब झोंपड़ी पहले से ज्यादा भयानक लग रही थी। हर दीवार पर नए खून के नाम लिखे थे। वो आखिरी नाम था, निम्रा। वो काम कर पीछे हटी और एक आवाज ने इसके पास से सरगोशी की, अगर तस्वीर को ना तोड़ा तो तू भी एक दिन दीवार पर लटकेगी। निम्रा ने देखा, वही तस्वीर अब दीवार से उतरकर फर्श के करीब रखे स्टैंड पर आ गई थी। शिकारी तस्वीर में जिंदा खड़ा मुस्कुरा रहा था और पस मंजर में लगी खालें इंसानों की थी। निम्रा ने तस्वीर को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक तस्वीर में से शिकारी का हाथ बाहर निकल आया, इसकी कलाई पकड़ी और तस्वीर के अंदर खींचने लगा। निम्रा ने आखिरी लम्हे में मेज पकड़ी, चेहरा खून की लकीर से भरा हुआ, और जोर लगाकर चीखी, मैं शिकार नहीं हूँ। अगर तस्वीर इसे अंदर खींचती जा रही थी, इसको अगर ना रोका गया तो निम्रा हमेशा के लिए शिकारगाह की कैद में होगी और शिकारी आजाद। निम्रा की उंगलियां तस्वीर के किनारे फंसी हुई थीं। तस्वीर का अंदरूनी खुला इसे खींच रहा था, जैसे वहां कोई और दुनिया हो, अंधेरे, खून और चीखों से भरी हुई। शिकारी तस्वीर के अंदर मुस्कुराता हुआ इसे अंदर ले जाने के लिए पूरी कुव्वत लगा रहा था। निम्रा ने पूरी ताकत से दीवार की कील थामी।
मगर इसकी गिरफ्त फिसल रही थी। तभी इसे अपने कैमरे की रोशनी दिखाई दी, जो फर्श पर अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। इसे अचानक वो जुमला याद आया जो कब्रिस्तान में मिट्टी से उठी हुई मुर्दों ने आवाज में कहा था, हमें निजात चाहिए। निम्रा को समझ आ गया, ये सिर्फ इसकी नहीं, हर कैदशुदा रूह की जंग है। इसने आखिरी झटके से अपनी कलाई तस्वीर के शिकंजे से आजाद की और तेजी से कैमरा उठाया। कैमरे की रोशनी तस्वीर पर पड़ते ही शिकारी की चीख जमीन हिला गई। तस्वीर के अंदर अंधेरे के बादल उठे और शिकारी की आंखें खून बहाने लगीं। रुको, ये रोशनी मेरे शिकार जला देगी, निम्रा ने हाँफते हुए कहा। तेरी ताकत अंधेरे से है और अंधेरे का खात्मा रोशनी से। शिकारी गुस्से से आग बखोला हो गया। वो तस्वीर से निकलकर पूरी तरह झोंपड़ी में आ मौजूद हुआ। फटी खालियां दीवारों से लरजने लगी, इंसानी चीखें फिजा में तैरने लगी। निम्रा पीछे भागी, मगर शिकारी ने एक छलांग लगाई। इसकी छुरी निम्रा के बालों के इतने करीब से गुजरी कि एक लट जमीन पर गिरी। निम्रा ने लकड़ी की मेज उठाकर इस पर दे मारी। शिकारी लड़खड़ाया, मगर गिरगिरा उठ खड़ा हुआ। आवाज भारी थी, मगर अब इसमें बेबसी छलक रही थी। अगर मैं कैद रहा तो ये सब रूहें भटकती रहेंगी, मुझे ख़त्म किया तो सब आज़ाद। निम्रा रुक गई। क्या इसे वाकई इसे ख़त्म करना होगा? हर तरफ से गूंजी सरगोशियाँ अब इसकी हिम्मत बढ़ाने लगी। हमारी चीखों का हिसाब पूरा कर, इस तस्वीर को तोड़, हमें रोशनी में लुटा दे। निम्रा ने कांपते हाथों से कैमरा दोबारा तस्वीर की तरफ मोड़ा। शिकारी गुस्से से अंधा होकर इस पर छिपटा। निम्रा ने तस्वीर को दीवार के साथ मारा। तस्वीर का शीशा टूट गया। रोशनी ने पूरी झोंपड़ी को घेर लिया। वो आप पक्का की अलमनक चीख गूंज उठी। कार्य का जिस्म धुआं बनने लगा, चलती हुई खाल से बू उठने लगी और इसकी आखिरी चीख थी, मेरा शिकार अब भी बाकी है। चीखता रहा जब तक कि वो मुकम्मल तौर पर खत्म ना हो गया। झोंपड़ी का सारा अंधेरा यकदम मासूम हुआ। दरवाजे और खिड़कियां खुल गईं, दीवारों पर लटकी खाले जमीन पर गिरी और आहिस्ता आहिस्ता इंसानों के जिस्म बनने लगे, जिंदगी की चैना लौटते हुए। बाहर सुबह की पहली रोशनी दाखिल हुई। हवा बलम की तरह साफ हुई। जंगल जैसे बरसों बाद सांस ले रहा था। निब्रा ने थकी हुई नजरों से अतराफ देखा। वो जिंदा थी और हर कैद रूह आजाद। उसने अपना कैमरा उठाया, रिकॉर्डिंग बंद की, आंखों में आंसू लिए झोंपड़ी से बाहर निकली। जंगल अब खामोश था, मगर इस खामोशी में अमन था, खौफ नहीं। इख्तिताम शायद नहीं। कुछ दिन बाद टीवी पर निम्रा की रिपोर्ट चली। पूरे मुल्क ने इस खौफनाक कहानी को देखा। सब हैरान थे कि कैसे इसने मौत से लड़कर सच दुनिया के सामने रख दिया। लेकिन रात को जब वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी, इससे एक हल्की सी आवाज सुनाई थी, शिकार कभी खत्म नहीं होता। इसने डरते हुए कैमरा दोबारा उठाया। कैमरे की स्क्रीन पर आखिरी रिकॉर्डिंग खुली। झोंपड़ी के दरवाजे की जो बंद हो रहा था और दरवाजा बंद होने से पहले वही सुर्ख आंखें उसके कैमरे की तरफ घूर रही थी। नम्रा के हाथ से कैमरा गिर गया। इसके पीछे अंधेरों में कोई मौजूद था। आहिस्ता आहिस्ता कदमों की चाप और फिर वही आवाज, अगला शिकार, कहानी खत्म या अभी शुरू हुई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर इसी कहानी का आपको सीज़न 2 देखना हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें।